السلام علیکم۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے صدر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی کی صدارت میں کل پولیس انسٹیٹیوشن میں اکیڈمی کا پہلا اجلاس ہوا۔ ریاست قطر نے فلسطینی کیمپ جنین پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ نہتے فلسطینی عوام کے خلاف جاری اسرائیل کے گھراونے اور بھیانک جرائم کا ہی تسلسل ہے۔ فلسطین کے شہر جنین پر اسرائیل کے ظالمانہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد ایک عمر رسیدہ خاتون سمیت 9 ہو گئی ہے، جبکہ 20 افراد شدید زخمی ہیں اور ان میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ون ڈے کرکٹ میں سال کے بہترین کرکٹر اور سب سے بڑے ایوارڈ یعنی کرکٹر آف دا ایئر کے اعزازات سے نوازا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے صدر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی کی صدارت میں کل پولیس انسٹیٹیوشن میں اکیڈمی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران فیکلٹیز کے پروگراموں کے حوالے سے ایجنڈے پر درج موضوعات بالخصوص ماسٹر ڈگری کے پروگراموں کا جائزہ لیا گیا اور مناسب فیصلے کیے گئے۔ اکیڈمی کی سپریم کونسل کے تمام اراکین نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے صدر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے کل پولیس کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے 5ویں اور راس الفان ایمرجنسی اور سیفٹی کالج کے 4تھے اور 5ویں بیچ کے طلباء کے درمیان تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل صبح پولیس انسٹیٹیوشن میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں اعلیٰ افسران، وزارت داخلہ کے اداروں کے ڈائریکٹرز، اکیڈمی کی سپریم کونسل کے اراکین، تدریسی عملے اور پاس آؤٹ کرنے والے طلباء کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ ریاست قطر نے فلسطینی کیمپ جنین پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ نہتے فلسطینی عوام کے خلاف جاری اسرائیل کے گھراونے اور بھیانک جرائم کا ہی تسلسل ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل اب پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن ہو گیا ہے کہ اس کا احتساب نہیں ہوگا اور وہ سزا سے بچ نکلے گا، اور اسی احساس سے حوصلہ پا کر وہ فلسطینی عوام کے خلاف مزید جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور بچوں، خواتین اور عمر رسیدہ افراد سمیت تمام عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے اور اسپتالوں اور سول اہم مقامات کو تباہ کر رہا ہے۔ بیان میں تمام تر کشیدگی اور تشدد کا ذمہ دار قابض انتظامیہ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور انسانی مسائل کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی دنیا کے کسی ایک خطے میں اس پر عمل اور دوسرے حصے میں اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے اس رویے کو ناقابل قبول دوہرا معیار قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے فلسطین کے حوالے سے قطر کے مستقل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، جن میں سن 1967 کی حدود میں ان کی آزاد ریاست کا قیام بھی شامل ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کے ساتھ کل ملک کے دورے پر آئی ہوئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سیکرٹری اور مغربی ایشیائی ملکوں کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی کی ایگزیکٹو سیکرٹری محترمہ رولا دستی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشترکہ تعاون اور اس کو بالخصوص لیبر سیکٹر میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر برائے سماجی
वज़ीर बराए समाजी तरक्की और ख़ानदान मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल-मसनद के साथ समाजी उमूर के अरब वज़रा की कौंसिल के 42वीं सेशन की साइडलाइन पर मुतादिद मुल्कों के वज़रा ने अलग अलग मुलाकात की। इन वज़रा में सऊदी अरब, लीबिया, मराकश, अलजायर, यमन, मोरितानिया, जिबूती, उर्दन, सोमालिया, फ़लस्तीन और जज़ाइरुल क़मर के वज़रा शामिल हैं। इन मुलाकातों में कतर और उन अरब मुल्कों के दरमियान समाजी तरक्की और फैमिली और ख़वातीन के शोबों में मुश्तरका ताउन का जायज़ा लिया गया। अरब मुल्कों में समाजी उमूर के वज़रा की कौंसिल का 42वां इजलास कल दोहा में इख्तिताम पजीर हो गया। 2 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर जारी करदा दोहा एलामिये में फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के कामयाब इनेकाद के हवाले से कतर की कोशिशों को सराहा गया, जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट माजूर अफराद के लिए फुटबॉल के आलमी मुकाबलों की तारीख का बेहतरीन वर्ल्ड कप साबित हुआ। इसी तरह इसके दौरान अरब नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें भी मिलीं। एलामिये में कतर की जानिब से किए गए इस ऐलान का खैर मकदम किया गया कि वो सन 2028 में माजूरी के मुतालिक चौथी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। एलामिये में समाजी उमूर के अरब वज़रा की कौंसिल ने एक बार फिर कहा है कि पायदार तरक्की के 2030 के मंसूबे पर अमल दरामद जारी रखने की ज़रूरत है। रियासत कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल की यूनिवर्सिटियों के सरबराहों और आला तालीम के इदारों के डायरेक्टर्स के 25वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास सऊदी अरब के शहर दमाम की इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। इजलास के दौरान मुतादिद अहम उमूर पर गौर व गौस किया गया, जिनमें खलीजी मुल्कों में आला तालीम के मुतालिक खलीजी सुप्रीम कौंसिल और वज़राए तालीम के फैसलों पर अमल दरामद का मौजू सरे फहरिस्त रहा। फ़लस्तीन के शहर जनीन पर इसराइल के ज़ालिमाना हमले में शहीद होने वालों की तादाद एक उम्र रसीदा खातून समेत अब 9 हो गई है, जबकि 20 अफराद शदीद जख्मी हैं और इनमें से 4 की हालत नाजुक है। काबिज फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शुमाल में वाक़े इस शहर पर कल हल्ला बोल दिया और फौजी मकानों की छतों पर चढ़ गए। इसके बाद झड़पें शुरू हो गईं और गासिब फौजियों ने गोलियां और आंसू गैस के गोले चलाए। इसराइली काबिज दस्तों ने बिल्डोजर का इस्तेमाल करते हुए जनीन क्लब को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। इस कार्रवाई में गोलियों, गोलों, ड्रोन तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाई से जनीन कैंप में वसी तबाही हुई। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, मकानात, गाड़ियों और फ़लस्तीनियों की इमलाक व जायदाद को तहस नहस कर दिया गया। इसराइल के ज़ालिमाना हमले के खिलाफ शहर भर में जुलूस निकाला गया और कत्ले आम की मजम्मत की गई। इसराइल ने इस घिनौनी कार्रवाई के दौरान अस्पतालों, एम्बुलेंसेस और मरीजों को भी नहीं बख्शा और अश्क आवर गोलों की वजह से अस्पताल में दाखिल मरीजों को सांस लेने में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी सदर के दफ्तर ने इसराइली हुकूमत के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को रोकने का ऐलान किया है और तमाम ग्रुपों से अपील की है कि वो इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए एक जामे कौमी विजन पर मुत्तहिद हो जाएं। सदारती दफ्तर के तर्जुमान जनाब नबील अबू रुदेना ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी इस वक्त से इसराइल के साथ सिक्योरिटी राब्ते को ख़त्म किया जाता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जनीन कत्ले आम को आलमी अदालत इंसाफ में पहले से पेश करदा मुकदमात में फ़ौरन शामिल कर रही है और फौरी मुतालबा करेगी कि तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी टीम फ़ौरन यहाँ आए और इस कत्ले आम के मुतालिक अपनी रिपोर्ट आलमी अदालत इंसाफ और सिक्योरिटी कौंसिल को पेश करे। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को वनडे क्रिकेट में साल के बेहतरीन क्रिकेटर और सबसे बड़े अवार्ड यानी तमाम फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी यानी आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाजों से नवाजा है। बाबर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जबकि ये लगातार दूसरा साल है कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल किया। गुज़िश्ता बरस ये एजाज फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के हिस्से में आया था। आईसीसी के मुताबिक 2022 में बाबर आजम वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने तमाम फॉर्मेट्स में 2000 से ज्यादा रन्स बनाए और कैलेंडर ईयर में उनकी सेंचुरियों की तादाद 8 जबकि निस्फ सेंचुरियों की तादाद 17 रही। बेलारूस की खिलाड़ी अरीना साबालेंका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पोलैंड की हरीफ खिलाड़ी को सीधे सेटों में 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला कागिस्तान की खिलाड़ी एलिना रिबाकिना के साथ होगा। एलिना ने सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया एजारिंका को सीधे सेट्स में शिकस्त दी। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम व वजीर दाखिला और पुलिस अकेडमी की सुप्रीम काउंसिल के सदर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अलसानी की सदारत में कल पुलिस इंस्टीट्यूशन में अकेडमी का पहला इजलास हुआ। रियासत कतर ने फलस्तीनी कैंप जनीन पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ये हमला निहत्ते फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली घिनौने और भयानक जराइम का ही तसलसल है। फलस्तीन के शहर जनीन पर इसराइल के जालमाना हमले में शहीद होने वालों की तादाद एक उम्र रसीदा खातून समेत 9 हो गई है, जबकि 20 अफराद शदीद जख्मी हैं और इनमें से 4 की हालत नाजुक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को वनडे क्रिकेट में साल के बेहतरीन क्रिकेटर और सबसे बड़े अवार्ड यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाज़ात से नवाजा है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर जासिम हुसैन और फरजाना सफदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की वन क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।